Hello friends, welcome to our session on career counseling, and today we are discussing on how to prepare for the competitive, that is the entrance examination. We have discussed a lot in the previous session and we tried to understand if you wish to go in the field of MBA, what are the options for you, how you can go, how you can prepare. And taking the session forward, I would like to tell you all that for this discussion we have once again with us in our studios Mr. Akshay Srivastav. Mr. Akshay Srivastav is an educationist, a counselor, a change maker, I would say, because he believes in bringing positive change in your life. So friends, if you have any question, do call us, do talk to us, do ask your questions through our toll-free number. Our number is 1-800-110-430. I repeat, our number is 1-800-110-430. So we are waiting for your calls. Till then, I have lots of questions in mind, and on your behalf, I would like those questions to be asked from Mr. Akshay. Mr. Akshay, we have discussed a lot, and there is a lot more to be discussed because this is an endless sea from where we could have, and we would be blessed to have maximum knowledge through you. Now, my question is, what are the options for the students, specifically those who have done, for example, IIT, for example, those who have done their BTech, they have certain goals, predefined goals in their mind. Now, if they think to go in the field of MBA, what is your say? Of course, it would be a good decision, but how could they get into that, and what are the options for them then? Perfect. Okay, so point number one, the students who are actually going for an MBA after the BTech, maybe from an IIT, maybe from a triple IT, or maybe from any other college. There are two categories of students. पहली कैटेगरी क्या होती है? 12th में PCM लिया था, मुझे लगा कि इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली. सेकेंड ईयर में आते आते आई रियलाइज्ड दैट इंजीनियरिंग इज़ नॉट रियली माई कप ऑफ टी, but since I've already entered a top-notch tech college, let's continue, let's go with the flow, and ultimately I'll think on it. अब फाइनल ईयर तक आते आते क्या समझ में आया? This is not something I would want to do in future. So the only way to change my field is let's do an MBA. This is category number one. Category number two, I have done my BTech and it's from a very good college. Now I want to go for some WorkX. WorkX लेने के बाद I realize कि if I actually want to go to an upper level or to a higher chain of authority, उस केस के लिए I need a master's and a management degree as well, because जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा वैसे वैसे I would get a team and I would have to handle a team, I would have to manage a lot of work. So leading those things, I would need a management degree. This is category number 2. इसके अलावा एक कैटेगरी और आती है. मैंने बीटेक करी, मुझे समझ में आ गया कि बॉस दिस इज द वर्ल्ड आई वांट टू गेट इनटू और मुझे इसी दुनिया में आगे बढ़ना है. उन स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है एमटेक का ऑप्शन. सो पॉइंट नंबर 1, द स्टूडेंट्स हैव टू डिसाइड ऑन देयर ओन इन तीन में से वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. क्या वो कैटेगरी नंबर 1 को बिलोंग करते कि यार बीटेक तो जोश में कर ली बट आई कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस वर्ल्ड. इन दैट केस वंस अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, you should have some kind of experience in different fields so that you can decide कि masters कहाँ पे करनी है. Many students actually do not know this, but there's a course called MBA in IT as well. We can do an MBA in IT field. ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते. यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट और टेक की कॉम्बिनेशंस को सीखेंगे. बट हाँ, if you are very sure कि no, I don't want to stay in this field, then yes, the way I've discussed earlier, you can look at an MBA in marketing, operations, finance, HR. नहीं तो इससे हट के international relations, you can look at business analytics, you can look at data science as well. हाँ, data science की दुनिया में जाने के लिए coding एक बहुत ज़रूरी पार्ट है. So you should be very sure कि हाँ यार coding अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है. If you are enjoying coding, do get into this field. You'll actually excel. But हाँ, अगर अच्छी नहीं लगती तो फील्ड चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर हमें मजे नहीं आएंगे, we won't be able to excel in that field. This is point number 1. Second, if you want to stay in the technology वाली फील्ड, मैंने कंप्यूटर्स में अपनी बीटेक करी है, मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगी है और मैं इसी दुनिया में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, go for an MTech. That's not a bad option at all. Third, मैंने बीटेक करी, मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया,
अब मैं ग्रोथ लेना चाहता हूँ, go for a general MBA course wherein you're able to understand how to handle a team, wherein you're able to understand the different aspects that you need to handle. Because if you're going at the manager position, you might have to handle the marketing of the firm as well. You might have to handle the operations of the firm as well. You might get a team जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रही है. तो उस चीज़ के लिए हमें एक जेनेरिक नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ को संभालने की. अकॉर्डिंगली चूज दी नेक्स्ट डिग्री यू वांट टू गो फॉर. हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डबल मास्टर्स की भी बात करते हैं. दैट इज समथिंग विच वन शुड डू ओनली आफ्टर अ सर्टेन एक्सपीरियंस. कहीं ये ना हो कि भाई पहले MBA के बाद मज़े नहीं आए तो एक और ले लेता हूँ, अगर दूसरे के बाद नहीं आए तो हमेशा पढ़ाई नहीं करनी. वी नीड टू क्रिएट अ करियर एज वेल. दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. डेफिनेटली, बट देर इज़ अ पॉइंट इन लाइफ जब आपको ना कुछ समझ में नहीं आता है. और जैसा कि आपने कहा कि ये दुनिया मुझे पसंद नहीं आई. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज़ डन द प्लेन मास्टर्स, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स से किया या फिर कॉमर्स से किया या फिर आर्ट से ही क्यों नहीं किया. अब कभी कभी हम ऐसे डिलेमा में होते हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हमें MBA दिखाई देता है. सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन देयर मास्टर्स, नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर देम? बिकॉज जितना हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं उतने अचंभित हो जाते हैं. कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो क्या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट आर्ट्स करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद अगर वो MBA करना चाहता है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर हिम? दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छा, इसमें ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ ये है कि देर आर एक्चुअली सम कॉम्बिनेशंस, और वो कॉम्बिनेशंस ना हमेशा हमारे फ्यूचर में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वन हैज़ डन साइकोलॉजी, ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी करी, मास्टर्स में साइकोलॉजी करी, अब आगे जाके थोड़ी सी फील्ड चेंज करनी है, हम वो साइकोलॉजी की जो बिल्कुल वो काउंसलिंग वाली दुनिया है उस दुनिया में नहीं रहना चाहते. Combine psychology with something like human resources. It's an amazing combination. Psychology plus human resources. Why? Because if you are a human resources executive, your job is to understand the mindset of the current employees. कहीं ना कहीं वो जो psychology का background है ना, वो हमारी बहुत मदद करेगा. If I'm interviewing someone, it is my responsibility to judge one thing very clearly. Is that person fit for the profile we are hiring for? कई बार लोग अपना रिज्यूमे भेजते हैं, कई बार लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, बट दे नॉट रियली फिट फॉर द प्रोफाइल. अगर वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड होता है ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करेगा. यू कैन कंबाइन साइकोलॉजी विद समथिंग लाइक मार्केटिंग एंड यू कैन गेट इनटू मार्केट रिसर्च. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर एक्चुअली मार्केटिंग, इफ यू आर डूइंग मार्केटिंग फॉर अ सर्टेन कंपनी, हमारा मेजर रोल ये होता है कि उस कंपनी का जो मेजर प्रोडक्ट है या जो उनका मेजर सर्विस है वो सही इंसान के पास पहुंचे. वो सही इंसान ढूंढने के लिए भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड एक बहुत मेजर हेल्प देता है. फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू कैन लुक एट अ कंपनी लाइक firstcry.com हु क्रिएट्स प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबीज. तो वो किसके बीच में मार्केटिंग करेंगे? दे वुड डू देयर मार्केटिंग स्पेसिफिकली अमंग मे बी न्यूली वेड्स. तो वहां पे पूरी मार्केट रिसर्च की टीम आती है जो ये रिसर्च करती है कि किस डेटा पे काम करना चाहिए, और वहां पे ये साइकोलॉजी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. You can combine psychology with something like law, and you can get into something like criminal psychology. So ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. हाँ, इसके बाद हो सकता है किसी ने पॉलिटिकल साइंस करा है, किसी ने हिस्ट्री करा है, और उसके बाद वो सोच रहे कि आगे क्या करे. पॉल साइंस को लॉ के साथ कंबाइन कर दो, हिस्ट्री को लॉ के साथ कंबाइन कर लो. अमेजिंग कॉम्बिनेशन. आगे जाके फ्यूचर बहुत अच्छा है. यू कैन कंबाइन दीज टू कोर्सेज विद समथिंग लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल. IR आगे जाके, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट इज अ गोल्ड माइन राइट नाउ. इट इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक कोर्स एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट. सो येस, यू कैन कंबाइन पॉल साइंस और यू कैन कंबाइन हिस्ट्री विद समथिंग लाइक लॉ. यू कैन कंबाइन इट विद समथिंग लाइक IR. किसी ने LLB करी है, ऑलरेडी हम लोग लॉ कर चुके हैं. हमने 12 के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया विच वॉज अ BA LLB और अ BBA LLB और मे बी अ BCom LLB और मे बी अ BSW LLB. अब हम सोच रहे कि आगे क्या करना है. उस केस में भी IR के साथ कंबाइन करो. एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. यू हैव डन इकोनॉमिक्स. हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में बहुत आगे कर चुके. वी हैव डन अ बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, वी हैव डन अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. नाउ यू वांट टू कंबाइन इट विद समथिंग एल्स. यू कैन गो फॉर पब्लिक पॉलिसी. यू कैन नोट दिस डाउन. पब्लिक पॉलिसी वंस अगेन बहुत हेल्प करने वाले आगे जाके. इट इज अ वेरी गुड कोर्स and a very futuristic course. There are many people who want to just change their field altogether.
उस टाइम पे यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. You can look at websites like Coursera.com. You can look at websites like Udemy.com, जहाँ पे ना इन सारे कोर्सेज से रिलेटेड छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, जिसमें आपको ये नॉलेज मिलेगी कि एक्चुअल में अंदर पढ़ाया क्या जाता है. यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द कॉलेज करिकुलम एज वेल. So before selecting any masters का course, you should always go through the college syllabus कि यार college में these are the subjects I would be studying. If you're comfortable with those subjects, go ahead with it. For example, I've done a bachelor's in economics. I might want to go for masters in economics, but I am not very fond of maths. Do not go for it. Economics is full of numbers. You're not really interested in mathematics, I would suggest to go in the other direction for the time being. You are a very expressive person. You think कि I can talk a lot, I can speak in front of people. You might be a very good fit for marketing, but you might also be a very good fit for law. So once again, personality matters. Double masters करो, बिल्कुल करो, लेकिन based on your personality. And yes, पढ़ाई would always help you in future. That is not an issue. And this is what some students have the bent of mind. Let's upgrade ourselves. Yeah. And in that scenario, specifically, if I talk about some students, for example, if I talk about a student who has done his masters in advertising, now he feels so or she feels so कि मुझे तो marketing में बड़ा interest आ रहा है. Let's go for the MBA. कहीं ना कहीं मेरा advertising का जो area है वो upgrade होगा. I will be acquainted with new things, new terminologies, new avenues, new sources. So in that case, this is one of the examples. ऐसे ही बहुत सारी हमारे पास fields हैं. अगर हम designing की बात करें, Right. those who are into designing, they feel so. Those who are into graphics, उनको लगता है कि चलो अब MBA करते तो my scenario or the avenues will open for me. For them, what do you want to say? Once again, जैसे मैंने अभी बोला, the combinations matter. For example, you have done fashion communication, you've done something related to designing, and you want to upgrade yourself. Luxury brand management, an amazing course, an amazing opportunity. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, साइकोलॉजी करो, कंबाइन इसको, कंबाइन इट विद ह्यूमन रिसोर्सेज, कंबाइन इट विद लॉ, कंबाइन इट विद मार्केटिंग. सो इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन. अपग्रेड करो, लेकिन अपग्रेड लॉजिकली करो. एडवर्टाइजिंग करिए, डिजिटल मार्केटिंग माइट बी अ गुड ऑप्शन. एडवर्टाइजिंग करिए, मार्केटिंग माइट बी अ गुड ऑप्शन. सो इट इज ऑलवेज वाइज टू नो कि यार अगला स्टेप लॉजिकल है या नहीं. कहीं ऐसा ना हो करी एडवर्टाइजिंग है और मास्टर्स पे फाइनेंस में कर रहे हैं. एडवर्टाइजिंग अच्छा तो लग रहा था लेकिन फाइनेंस कर लेते. नहीं, इट शुड बी अ लॉजिकल स्टेप फॉर यू. सो यू शुड ऑलवेज थिंक कि यार जो मैंने करा है अभी तक उसके कॉम्बिनेशन में आगे क्या अच्छा है. इफ यू आर एबल टू क्रिएट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ओवर हियर, you are done for your life. You are actually very sorted and you will actually enjoy the work you are doing. That is how you should look at it. Now moving towards a little step right or left, I should say. ऐसा इसलिए कह रही हूँ because we have certain students, बहुत बड़ा एक community है, those who want to join the government sector. अच्छा, while they are preparing for the government examinations for various positions and posts, it's part and parcel of life. Sometimes success is yours and sometimes failures. ऐसे में क्या होता है, the students get frustrated कि अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि जो competitive exams की जो एज थी अब तो वो भी निकल गई. For them, how should they plan कि वो जब अपना competitive exam दे रहे हैं, in case if they fail, तो उनके पास एक ऑप्शन है MBA और जिस टाइम वो पढ़ाई कर रहे हैं. So how should they plan कि एटलीस्ट अगर नहीं हुआ competitive examination, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा पाए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो एटलीस्ट they have this safer side. For them, what is your say? So you need to understand one more thing. अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो हमारे MBA के एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई भी और एंट्रेंस हो, कहीं ना हमारा जो बेसिक एप्टीट्यूड है, विच इज मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके, इट इज कॉमन इन बोथ दी केसेस. तो अपना ना एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखो. अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, समवेयर डाउन द लाइन, इवन इफ ड्यू टू सम रीजन you're not able to crack the government exam, you might actually crack the other B schools or maybe the other colleges that you're aiming for. Secondly, देखो हर एग्जाम का ना अपना एक बेसिक एप्टीट्यूड के साथ उस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट इज समथिंग जो हमें अलग से प्रिपेयर करना है. सो हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कह रहे हैं कि आई एम डूइंग अ BBA और मे बी अ BCom बट इसके बाद UPSC देना है. तो देखो
अगर आप बीकॉम कर रहे हो और अगर आपको अकाउंटेंसी, अगर आपको वो फाइनेंस वाली दुनिया अच्छी लग रही है, तो साथ साथ एमबीए फाइनेंस भी अपने दिमाग में रखो. यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विद अ प्लान बी. येस, मेनी पीपल से कि यार अगर प्लान बी रख लिया तो हमारा मेन गोल तो खत्म हो गया ना. मे बी येस, मे बी नो, बट एज अ काउंसलर आई फील यू शुड बी एडवेंचरस, नॉट विद योर करियर. जितने एडवेंचर्स करने लाइफ में करो, करियर को थोड़ा सेफ रखो. अगर वो सेफ्टी नेट होएगा हाथ में तो टेंशन कम होएगी. हाँ, एक जिस चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर कोई भी कोर्स कर लेंगे, साथ साथ तो हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स की ही तैयारी करनी है ना. वो मत करो. जो भी कोर्स करो ये सोच के करो कि यू माइट हैव टू यूज दिस कोर्स इन फ्यूचर एज वेल. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू नो कि जब हम ये सोच लेते हैं कि चलो कोई कोर्स कर लेते हैं, बनना तो हमें गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय ही है, देन द थिंग्स गो रॉन्ग एज वेल एज यू लैंड इट इनटू समवेयर एल्स. जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप नहीं जा पा रहे हैं और वहां चले जाते हैं जहां आपको जाना नहीं होता है. सो व्हाट एडिशनल प्रिपरेशंस शुड द स्टूडेंट्स रिक्वायर टू डू व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली एमबीए? Apart from their reasoning, English, mathematics, what else? So one major thing that you need to work on is your personality, your communication skills and your outside knowledge as well. देखो, ये aptitude test जो ये तो हमारे entrance clear करा देगा. But once you are done with the entrance, the next step is the interview. And the personal interview and the group discussion plays a huge role in all these B schools. Group discussion में क्या होता है? You are sitting with maybe 10 to 15 students. And they would the main interviewer would give you a topic. Now you guys have to debate on the topic. अब कुछ बच्चे होते हैं, उन 15 बच्चों में चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं. ये लोग फिर बहुत जल्दी ना जीडी को क्लियर नहीं कर पाएंगे. सो पॉइंट नंबर 1, यू नीड टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एज वेल. हमारा अगर कॉन्फिडेंस सही है और अगर हमारे पॉइंट सही है तो फिर हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी क्रैक कर लेंगे. अच्छा, रिमेंबर वन मोर थिंग, ये जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स होते हैं ना, ज़्यादातर ये जो टॉपिक्स होते हैं, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द ग्लोब राइट नाउ. जब कोविड आया था उस वक्त ग्रुप डिस्कशंस का एक मेजर डिस्कशन कोविड पे होता था. जब रिसेशन आया तो रिसेशन पे हुआ. अभी इजराइल में जो हो रहा है शायद उस पे हो. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अक्रॉस द ग्लोब एंड यू शुड हैव योर ओन ओपिनियंस एज वेल. अपने वो ओपिनियंस को कैसे सामने रखना है, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन ओपिनियंस तभी रख पाओगे अगर आपको नॉलेज होगी. सो वन थिंग जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जनरल नॉलेज. तुम्हारी अगर जीके स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन भी क्रैक हो सकता है. पर्सनल इंटरव्यू में यू नीड टू नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. अगर तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, यू आर सॉर्टेड. अगर प्रेजेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद हम लोग कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करेंगे. सो इन दो चीज़ों पे साथ साथ काम कर लो. एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा, पीआई और जीडी क्लियर हो गया तो कॉलेजेस आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. प्लस वी आर एमिंग फॉर द टॉप बी स्कूल्स, अग्रीड. लेकिन देयर आर सम हिडन जेम्स एज वेल. उन हिडन जेम्स को भी जरूर एम करो. अशोका यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी, फ्लेम्स, शिवनादर, ओपी जिंदल, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, महिंद्रा यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद. दीज आर सम यूनिवर्सिटीज जो काफी सारे लोग नहीं जानते हैं. लुक एट दीज यूनिवर्सिटीज एज वेल. यहाँ पे देखो कि तुम्हारे मतलब का कोई कोर्स है या नहीं है, और अगर है तो ज़रूर अप्लाई करो. इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज. एंड येस, बिफोर एक्चुअली फाइनलाइजिंग ऑन अ यूनिवर्सिटी, you should also try and visit the college. You should try and visit the campus. You should see कि क्या तुम्हारे लिए वहाँ पे वो चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए. Every student has a different requirement. Some colleges would fulfill a certain set of requirements. Some colleges would be fulfilling some other set of requirements. तो तुम अपनी requirements के हिसाब से college select करो. Yes, the B school should be a good B school, agreed, but the exposure also matters. You should work on that as well. Now, one of the most important questions, because once a student apply for a particular college or B school, तो मन में सबसे पहली बात आती है कि क्या यहाँ पे scholarship है? Because it is what motivates you. Because you know, every college is not everybody's cup of tea. We have a different class of people, different set of mindsets. और हमारा जो financial status होता है, it is one of the most important thing in the Indian scenario if we talk about. So, are there scholarships available in different B schools?
सो दी स्कॉलरशिप्स एंड जो हमारे फीस में थोड़ा सा कंसेशन होता है वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फैक्टर नंबर 1 इज योर फैमिली बैकग्राउंड. So the colleges might ask your family background as well, and they might want to evaluate if you really need the fee concession or not. Point number 1. Second, your profile matters. तुमने क्या अलग से करा है, क्या हटके करा है, बहुत ज़रूरी है. Maybe writing a research paper, maybe going for a social project, maybe having a startup idea during your graduation, maybe doing a lot of internships, having your own social media page with a lot of followers. तुमने क्या अलग करा है बाकी बच्चों से. Why would a college want you in any matter? For example, if you might be a national level chess player, so the college would say कि okay, we are actually enrolling a student who's a national level chess player. It would increase a college reputation as well. बिल्कुल देगा वो तुम्हें scholarship. You've done a lot of research papers. You've created a very good resume for yourself. ऐसा रिज्यूमे जो शायद एक कॉलेज के बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है, तुमने वो सारी चीज़ें करी है. येस, द कॉलेज वुड डेफिनेटली गिव यू सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप. स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स होती है, फाइनेंशियल एड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों में कॉलेजेस हेल्प करते हैं. बट शर्त ये है that they would be looking at your profile, they would be asking you why should we give you the scholarship. ऐसा क्या अलग है तुम्हें कि हम तुम्हें ज़रूर बुलाए अपने पास. If you have that X factor in you, they would definitely give the scholarships. And how one sees herself or himself or herself after 5 years is what he will be or she will be. So one should constantly, persistently work on himself, herself, so that he can be or she can be what they want to be. So Mr. Akshay, thank you so much for giving us this wonderful session, and we believe that the students have gathered maximum knowledge through you, and someday they might meet you and say you have given us such a path that we are walking on that path, and we have reached the destination. As a counselor, I dream for that day to come. Thank you so much for this wonderful session. so And much. dear friends, we believe that your feedback are very, very important. Keep writing to us, keep watching us. We are going to upload this lecture on YouTube, and you can of course write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We will try to give answers to your question through our eminent experts, and we would be meeting again next Thursday and would be discussing on another topic related to your career. So keep watching us. Thank you so much.